So very good morning to all. Let's start with the next session. Till this particular point, we have discussed about different peripheral devices, about interfacing devices, that how we can interface our keyboard, LED, and such different devices using 8255, 8279. How we can control different interrupts. If you want to control multiple interrupts, then you can use 82. Which devices we can use for interrupt controller. What is the device name? 8259. That is an interrupt controller. And then we have seen DMA controller. If you want to control direct memory access, then 8237 or 8257 both are the same DMA controller we can use to control our memory access. So how we can configure this, how we can use this in different mode, so that all the things we have discussed till this particular point. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? What you need to do first, you need to write a control word and you need to initialize your particular device, peripheral device, interfacing device, and then you can start your programming. That is general approach. Okay, so now we are going to discuss first of all one remaining topic from our chapter number 17. So let me first of all share my screen. So let me first of all share my screen. Okay, so is screen is visible to you all? And am I audible? Okay. Okay. And now any query, if you are having any query related to whatever topics we have discussed till this particular point, then you can send an email to me. And I think your deadline for assignment number 5 is near. So complete your assignment number 5 as soon as possible and upload it. Okay. So let me complete the last topic of our chapter number 17, that is a weight state generator. How we can generate a weight state and what is the requirement of this weight state generator. Okay. So this is, we can say that this is a pin diagram, or you can say that is interfacing diagram for memory. Look, this is one memory. So in this memory, we are having 8K cross 8 memory is there. And this is RAM. So it means that you can read and write data. And this is ROM. So it means you can just read the data. So if you want to operate this ROM, if you want to read data from this ROM, what you need to do according to the size of this ROM, right now 12 address lines are connected over here. Chip enable is connected to this decoder. So, and 13, 14, 15 are connected over here. So what will happen? What is the process? Your 8085 will generate the address. 8085 will generate address. That address will be placed on this address bus, and after that this O0 line will be enabled. So this will be enabled, and address you will receive over here, and then as per the address, whatever address is received, whenever read signal is activated, the data is placed on data bus from that particular location. So that is a complete procedure. आपको डेटा कैसे मिलेगा? रीड करना है डेटा तो कैसे रीड कर आपको डेटा कैसे मिलेगा? So up to this particular point, we have assumed that this processor, our 8085 processor, and this RAM as well as EPROM, reading the data as well as writing the data from RAM,
as well as reading the data from ROM, that speed doesn't, there is no difference in speed. It means that whatever speed is required to read the data, that is adequate, that is sufficient. जितनी स्पीड से आपका प्रोसेसर ऑपरेट हो रहा है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी से आपका प्रोसेसर ऑपरेट हो रहा है, सो उतनी स्पीड में आपका डेटा यहाँ पे डेटा बस में अवेलेबल हो जाना चाहिए. सो अभी तक हमने ऐसा एज्यूम किया था दैट दैट स्पीड मैच इज देयर, बट व्हाट इफ दिस एजम्पशन इज नॉट ट्रू? अगर आपकी रोम है वो थोड़ी स्लो चल रही है, इफ रीडिंग अ डेटा फ्रॉम रोम इज टेकिंग मच टाइम, देन व्हाट विल हैपन? तो क्या करेंगे हम? सो एट दैट टाइम वी नीड टू एक्टिव द रेडी सिग्नल. रेडी सिग्नल हम जनरेट करेंगे, एंड इफ वी विल जनरेट रेडी सिग्नल, देन व्हाट विल हैपन? Processor will introduce one extra T states, or you can say that wait state. So your processor will wait for one more clock cycle. Let me explain it with diagram. I will explain it using diagram. But first of all, why we need to use this? इसका ये wait state generator है, उसकी requirement कब होगी? When it will require. So when speed doesn't match, your 8085 will operate at a faster speed as compared to your other interface devices. आपने यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट की हुई है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, रैम कनेक्ट की हुई है, रोम कनेक्ट किया हुआ है. सो जितनी स्पीड से आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, उससे कम स्पीड में अगर आपका रोम, रैम या कोई भी डिवाइस है वो वर्क कर रही है, तो क्या होगा? उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा को एक बार यहाँ पे एड्रेस मिल गया, तो एड्रेस मिलने के बाद उसको वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके डेटा यहाँ पे प्लेस करना होगा. सो इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम, एज जितना हमने एज्यूम किया था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो रेडी सिग्नल हम एक्टिव करेंगे और वेट करेंगे. सो पेरिफेरल, सो इट इज एन एक्सटर्नल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्लोअर पेरिफेरल. आपकी जो स्लोअर पेरिफेरल डिवाइस होगी वो ये रेडी सिग्नल जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगी, एंड इट इंडिकेट्स दैट पेरिफेरल इज नॉट येट रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर. सो द माइक्रोप्रोसेसर विल चेक. माइक्रोप्रोसेसर ये रेडी पिन को कब चेक करेगा? सो इफ यू कैन रिकॉल, वी आर हैविंग दिस एज अ वन ऑफ द पिन. ये एक इनपुट पिन है. अगर आपको याद है 8085 का पिन डायग्राम याद होगा आपको, if you can recall. So in 8085, one of the pin is ready pin. एक पिन है वो आपकी है ready pin. So यहाँ पे हम सिग्नल जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे. It is active low signal. So when this pin will be checked by your processor, ये पिन चेक कब करेंगे हम? So 8085 will check this pin at the T2 clock cycle of every machine cycle. हर एक मशीन साइकिल के जो सेकंड टी स्टेट्स है उसमें ये रेडी सिग्नल को चेक करेंगे, एंड इफ रेडी सिग्नल इज एक्टिवेटेड, देन वी विल इंट्रोड्यूस वन वेट स्टेट. वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी एक्सप्लेन इट. ओके, सो दिस इज ओवर हियर लेफ्ट हैंड साइड विदाउट वेट स्टेट, एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड दैट इज विथ वेट स्टेट. सो एट दिस T2 point we will observe the ready line. यहाँ पे रेडी लाइन है वो एक्टिव नहीं है, सो इट मींस दैट देयर विल बी नो वेट स्टेट विल बी इंट्रोड्यूस ओवर हियर. यहाँ पे वेट स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट T2 रेडी इज एक्टिवेटेड. रेडी यहाँ पे एक्टिव है, दैट इज एक्टिव लो. सो इट मींस दैट it needs to introduce one more T state that is called wait state. So यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा T states ऐड होगा. So your processor will wait for this amount of time. So आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो विदाउट वेट स्टेट क्या होगा? इतना टाइम लगेगा. अगर आपका प्रोसेसर एज वेल एज योर डिवाइस बोथ आर ऑपरेटिंग एट द सेम स्पीड, उसमें स्पीड मिसमैच नहीं है, तो इतने टाइम में आपका डेटा आपको मिल जाएगा. बट अगर स्पीड मिसमैच है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए. आपकी डिवाइस है वो थोड़ी स्लो है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए डेटा को डेटा बस में प्लेस करने के लिए. तो प्रोसेसर उतना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. तो वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे प्रोवाइड करेगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग
यूजिंग दिस वेट स्टेट, यहाँ पे वेट स्टेट इंट्रोड्यूस करके। अब ये वेट स्टेट कितने यहाँ पे ऐड होंगे? यहाँ पे सिर्फ एक ही बार रेडी सिग्नल जनरेट हो रहा है, अप टू वन पर्टिकुलर पॉइंट ओनली रेडी सिग्नल इज एक्टिव। सपोज रेडी यहाँ पे तक भी एक्टिव होगा, देन इट विल इंट्रोड्यूस वन मोर वेट स्टेट। जब तक आपका रेडी सिग्नल डिसेबल नहीं होता और डीएक्टिव नहीं हो जाता, तब तक वो वेट स्टेट इंट्रोड्यूस करता रहेगा। सपोज यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल तक आपका रेडी सिग्नल एक्टिव होगा, तो यहाँ पे आपके 2 वेट स्टेट जनरेट होंगे। सो व्हाट इज द मेन एम टू प्रोवाइड दिस वेट स्टेट? वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो 3 स्टेट में आपका रीड राइट ऑपरेशन आपका रीडिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा होगा, बट यहाँ पे इट टेक 4 टी स्टेट्स, 3 नॉर्मल एंड 1 दैट इज अवर वेट स्टेट। सो इतना थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा आपकी डिवाइस को जो डेटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, let's understand it with basic terminology so you will get better idea. So हमको यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपने एड्रेस प्लेस कर दिया, 8085 has placed address over here on this address bus, and this A0 to A12 bits are placed over here. So once this ROM will receive the address, यहाँ पे जब एक बार एड्रेस आ गया, after receiving the address on address bus, it will take some time to go to that particular location and place this data on the data bus. ये डेटा को यहाँ से रीड करके डेटा बस में प्लेस करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। That time we are calling accessing time for device, RAM, ROM, जो भी आपकी डिवाइस है उसका ये जो टाइम लगेगा। So इसको हम क्या बोलेंगे? This is the time that your memory takes to place the data byte on the data bus आफ्टर रिसीविंग एन एड्रेस। एड्रेस रिसीव करने के बाद उसको जो टाइम लगता है वो टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ओवर हियर वी विल टेक वन एग्जांपल दैट आवर ईपीरोम, ये जो ईपीरोम यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके लिए दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसको कितना टाइम लग रहा है? सो 450 नैनो सेकंड। सो इसका मीनिंग क्या है? सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? वंस द एड्रेस इज अवेलेबल ऑन दिस एड्रेस बस, एक बार इसको एड्रेस बस में एड्रेस मिल जाएगा, देन इट विल टेक 450 नैनोसेकंड टू प्लेस डेटा बाइट फ्रॉम दिस लोकेशन टू द डेटा बस। उसको कितना टाइम लगता है? 450 नैनोसेकंड जितना टाइम लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली your RAM, ROM, everything is made up of some semiconductor material, so it requires some internal processing. So उसको जो प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम लगेगा वो अभी हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 450 नैनोसेकंड। फॉर डिफरेंट रैम, फॉर डिफरेंट रोम, इट विल बी डिफरेंट। इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग टू मेक दिस रैम रोम। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द साइज ऑफ योर रैम रोम, सब कुछ इफेक्ट करता है। सो राइट नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर दैट 450 नैनोसेकंड है, उसको टाइम लगेगा किसके लिए? डेटा को डेटा बस में प्लेस करने के लिए आफ्टर रिसीविंग द एड्रेस। Okay, now this second time, that is we will call related to processor. So 8085 will begin reading of your data after the address line is valid. So इसका interpretation क्या होगा? That आपका जो प्रोसेसर है वो आपकी डेटा बस को रीड कब करेगा? When your processor will start reading your data. So यहाँ पे आप अगर ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, so this is let's say that related to your 8085, यहाँ पे आपने एड्रेस प्लेस किया, लोअर बाइट हायर बाइट, यहाँ पे आपका एड्रेस अवेलेबल हो गया। सो आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ टाइम योर प्रोसेसर विल सेंस योर डेटा बस को चेक करेगा और वो आपका डेटा रीड करेगा। तो वो कितने टाइम तक यहाँ पे वेट करेगा? सो इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल that it is taking 575 नैनोसेकंड। कौन से प्रोसेसर के लिए? द प्रोसेसर विच इज ऑपरेटिंग एट 320 नैनोसेकंड क्लॉक। जो प्रोसेसर 320 नैनोसेकंड जिसमें क्लॉक साइकिल होगी, वो प्रोसेसर के लिए ये टाइम क्या है? सो फॉर दैट प्रोसेसर दिस टाइम इज 575 नैनोसेकंड। सो इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या कर सकते हो? सो इसका इंटरप्रिटेशन आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपने एड्रेस प्लेस किया, एज सुन एज यू हैव प्लेस्ड द एड्रेस,
सो यहाँ पे एड्रेस हो गया. सो दिस इज फॉर. सो उसके 575 नैनो सेकंड के बाद वो आपके डेटा बस को रीड करेगा. तो इतने टाइम में आपकी रैम ने या रोम ने डेटा बस में डेटा प्लेस कर दिया होना चाहिए. आपकी रैम या रोम जो भी आप यूज कर रहे हो या कोई पेरिफेरल डिवाइस, कोई भी दूसरी डिवाइस यूज कर रहे हो, उसको डेटा बस में डेटा प्लेस करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 575 नैनो सेकंड. इन दिस एग्जांपल, this is not general, this is for processor which is operating at 320 nanosecond. ये एग्जांपल है एक प्रोसेसर के लिए, 8085 प्रोसेसर के लिए. सो उसके लिए इतना टाइम लगेगा. वो इतने टाइम तक वेट करेगा और उसके बाद आपकी डेटा बस को रीड करेगा. तो आपके पास इतना टाइम है, आपकी डिवाइस के पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आपका डेटा डेटा बस में प्लेस होना चाहिए. सो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे लोअर साइड में. सो ये आपकी मेमोरी का डायग्राम है. सो वंस द एड्रेस इज रिसीव्ड, यहाँ पे जब डिवाइस को एड्रेस मिल जाएगा, सो वंस द एड्रेस विल बी रिसीव्ड, सो ऑब्जर्व हियर, ओवर हियर इट इज टेकिंग सम डिले. यहाँ पे आपने एड्रेस प्लेस कर दिया था और इसको रिसीव होने में इतना थोड़ा डिले लगेगा. और डिले क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, सो इट इज, यहाँ पे है वो आपका 3 क्रॉस एक डिकोडर है, उसमें से ये आपकी डिकोडिंग सर्किट इनेबल होगी. सो यहाँ से आपका चिप सिलेक्शन इनेबल होगा. सो ये जो डेटा यहाँ पे बस है, तो वो डायरेक्ट लाइंस नहीं होगी, वो भी कोई बस ड्राइवर के थ्रू कनेक्टेड होगी. सो बस ड्राइवर में भी थोड़ा बहुत डिले आएगा. सो एवरीथिंग वी विल इनकॉर्पोरेट ओवर हियर, एंड बाय कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, इट इज टेकिंग दिस डिले टाइम. जो इंटरफेसिंग डिले टाइम है वो इतना इंटरफेसिंग डिले होगा. And then we will say that at this particular moment your device is receiving the complete address. Now from here it is having यहाँ से, from this particular point, for our example we are saying that it is taking 450 nanosecond. So इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोसेसर है वो डेटा कब रीड करेगा? आफ्टर 575 नैनोसेकंड. एंड आपको मेमोरी में एक बार एड्रेस रिसीव हो गया, उसके बाद वो डेटा प्लेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 450 नैनोसेकंड. सो इन अवर दिस एग्जांपल, this time is not exceeding. It means that in this example no need to generate a wait state. यहाँ पे वेट स्टेट जनरेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर की स्पीड है एज वेल एज द मेमोरी speed, both are in synchronize, or you can say that the speed is adequate, your device speed is sufficient, so no need to generate a wait state. आपको यहाँ पे wait state generate करने की जरूरत नहीं है. So we will have this. आपको यहाँ पे आपके पास कितना टाइम है, आप यहाँ पे डिले कितना हो सकता है? सपोज यहाँ तक आपका डेटा आ जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके बाद अगर आपका डेटा यहाँ पे प्लेस हुआ, अगर ये टाइम इससे एक्सीड हो गया, देन देयर विल बी प्रॉब्लम. देन यू नीड टू जनरेट अ वेट स्टेट. तो आपको क्या करना होगा? यू नीड टू जनरेट अ वेट स्टेट. सो दैट इज ओवर हियर, दैट ओवर हियर व्हाट इज दिस एग्जांपल. ये जो एग्जांपल है वहां पे हमारे पास जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 575, दैट इज अ टाइम that after this time your processor will access the data bus, and this is the time that is taken by your memory to place data on data bus. So this 125 nanosecond, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 125 नैनोसेकंड का. सो 125 नैनोसेकंड तक का डिले आप यहाँ पे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज, यू कैन राइट इट ऑल लाइक दिस. ये टाइम जो है 8085 का, this time 575 nanosecond is less than this particular time. कौन सा टाइम? Time to access your memory, decoding delays and burst driver. So यहाँ पे आपका ये क्या है? 575 nanosecond is less than 506. So यहाँ पे आप ये just for example है. सपोज यहाँ पे मैंने आपको बताया 450 नैनोसेकंड, यहाँ पे बताया ये जो डिले है वो डिकोडर का डिले है वो 38 नैनोसेकंड, एंड बर्स्ट ड्राइवर का डिले है वो 80 नैनोसेकंड. सो 506 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा, एंड दिस इज द टेकिंग 575 नैनोसेकंड. सो इन दिस केस
no need to generate the wait state. But if this time is suppose 590, ड्यू टू एनी रीजन ये टाइम अगर आपका ज्यादा है और इसका टाइम है वो 590 नैनो सेकंड लग रहा है आपको, देन so at that particular moment it will we need to generate a wait state. So वो केस में हमको क्या करना होगा, we need to generate a wait state. So wait state generate करने के लिए एक सर्किट आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी होगी. So this is one wait state generator. So what is this circuit? First of all, why we need to generate a wait state? It is clear. हमको wait state क्यों generate करना पड़ेगा? Because your device is slow. If your device is slow, in this example, ये जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे वेट स्टेट जनरेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट सपोज ऐसा आप एज्यूम करो कि ये टाइम अगर थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे डेटा प्लेस करने के लिए, सपोज यहाँ पे ये जो है 450 नैनो सेकंड में यहाँ पे आपको डेटा बस में डेटा मिल जा रहा है. सपोज दिस टाइम इज मोर, ये डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा. देन this at that particular moment you need to generate wait state. So उस wait state जनरेट करोगे तो उसका फायदा क्या होगा कि आपका प्रोसेसर अब 575 नैनो सेकंड में रीड नहीं करेगा, उसको भी थोड़ा एक एक्स्ट्रा जो टी वेट स्टेट हम ऐड करेंगे उसके जितना टाइम यहाँ पे मिलेगा और उसके बाद वो आपका डेटा बस है उसको रीड करेगा. दैट इज द पर्पस ऑफ एडिंग वेट स्टेट. ओके, सो दैट इज ओवर हियर. सो दिस इज वन वेट स्टेट जनरेटर. ये जो डायग्राम है वो वन वेट स्टेट जनरेटर का है. सो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल connect over here ALE signal. And what is this? This is a D flip-flop and this is also D flip-flop. So I hope all of you are aware about the functionality of D flip-flop. D flip-flop कैसे operate होगा. So this is a D flip-flop and this is also D flip-flop. So in first D flip-flop we have connected ALE signal and in second, this is just one example for generation of one wait state. ये वेट स्टेट जनरेट करेगा. कितने वेट स्टेट जनरेट करेगा? इट विल जस्ट जनरेट वन वेट स्टेट ओवर हियर. सो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन. सो यहाँ पे ALE सिग्नल हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड ओवर हियर क्लॉक, ALE सिग्नल इज कनेक्टेड एज अ क्लॉक एंड ओवर हियर आउटपुट फ्रॉम 8085, क्लॉक आउट ऑफ 8085 इज कनेक्टेड एज अ क्लॉक ओवर हियर. तो यहाँ पे हम हमारा जो नॉर्मल क्लॉक साइकिल होगा वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं क्लॉक आउट एंड यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं ALE सिग्नल. सो जब ALE एक्टिव होगा तब इसको क्लॉक मिलेगी. एंड व्हाट इज कनेक्टेड ओवर हियर, यहाँ पे डी पे क्या कनेक्टेड है, 5 वोल्ट. सो इट मींस दैट व्हेनेवर इट विल रिसीव द क्लॉक, जैसे इसको क्लॉक मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट इट विल बिकम 1. सो जब ये ALE सिग्नल एक्टिव होगा ये क्या हो जाएगा 1. सो इज एज सुन एज दिस इज 1 एंड यू विल रिसीव अ क्लॉक. What is the output Q? Q भी यहाँ पे क्या होगा 1 and what is the output Q bar? Q bar क्या होगा 0. So it means that we are generating a ready signal and this ready signal will go to your processor. Processor को हम ये ready signal यहाँ पे send करेंगे. So processor को ready signal मिलेगा. Processor will receive this ready signal. So if processor will receive a ready signal, so it will be checked. ये processor ये check कब करेगा, it will check during T2 सेकंड. आपकी जो क्लॉक साइकिल है, आपके जो टी स्टेट्स है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट विल चेक वेदर द रेडी सिग्नल इज, अगर रेडी सिग्नल इसके बाद एक्टिव होगा देन इट विल नॉट चेक. अगर रेडी सिग्नल यहाँ पे एक्टिव होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. सपोज ये जो है आपका T3, सपोज रेडी सिग्नल इज एक्टिवेटेड एट दिस मोमेंट, देन इट विल नॉट इंट्रोड्यूस वेट स्टेट. क्यों? क्योंकि जो रेडी पिन है वो ऑब्जर्व होगी एट T2 पे वो ऑब्जर्व होती है. सो during T2 or before T2 it should be activated. So जैसे ही यहाँ पे आप ALE सिग्नल आपने प्रोवाइड किया, आपने ALE सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया, तुरंत उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, so as soon as you have provided ALE signal, so this will be 1 and at the next clock pulse what will happen, ready signal is activated. ready signal है वो आपका एक्टिव हो जाएगा. So after this
as ready signal is activated, now what will happen next? So ये ready signal हमने generate कर दिया और आपका processor है वो one wait state introduce करेगा. Now this is 0, so it goes to reset. So यहाँ पे reset हो जाएगा. So at the next clock pulse यहाँ पे ALE अब आपका disable हो गया. ALE आपने जो signal दिया था वो भी यहाँ पे disable हो गया. तो अब आपने reset कर दिया. So now this will become 0. So this will become 0. So इसका मीनिंग अब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? So this is 0 and this will become 1. So it means that now we are disabling ready signal. अब हम वापस क्या कर देंगे? ready को disable कर देंगे. So ready will become 1 again. So it will just generate one wait state. ये सिर्फ एक ही wait state generate करेगा. अगर आपको एक से ज्यादा wait state generate करने हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ logic लगाना होगा. We need to provide some logic over there if you want to generate more than one wait state. But this circuit will only add one wait state. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ALE connect किया हुआ है. Why? Because we have connected ALE over here and ALE will be activated only for one T state. ALE कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा? One T state के लिए. So that's why this is only for one T state generator, one wait state generator. According to your requirement, you need to connect different things. आपके अगर मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सपोज मैंने पूछा है कि आपकी आपकी एड्रेस बस है, उसमें अगर एड्रेस आए A15 to A12, वो बिट्स 1 होंगे तो आपको वेट स्टेट जनरेट करना है. सपोज देयर आर टू मेमोरी साइमल्टेनियसली and one memory is ranging from 000 to 7FF. Just let me write it down. सपोज ऐसा है कि एक जो हमारी दो मेमोरी है हमने इंटरफेस की हुई है. एक मेमोरी है उसका एड्रेस है 000 to 7FFF. The address is, let's say that 000 to 7FFF. And the second memory interface it at location 800 to FFF. ये दो मेमोरी हमने इंटरफेस की हुई है. Suppose this particular memory is slower memory, and this particular memory is a faster memory. So for this you no need to generate a wait state. अगर आप रीड करोगे कौन सी मेमोरी में, सॉरी, फॉर दिस पर्टिकुलर मेमोरी यू नीड टू जनरेट अ वेट स्टेट. ये मेमोरी के लिए आपको क्या करना होगा? वेट स्टेट जनरेट करना होगा. बट ये मेमोरी के लिए आपको वेट स्टेट जनरेट नहीं करना होगा. तो उसके लिए अगर आपको सर्किट डिजाइन करनी है तो यहाँ पे आपको कौन सा सिग्नल इंटरफेस करना होगा, दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. यहाँ पे आप क्या इंटरफेस करोगे? सो दैट वेट स्टेट विल बी जनरेटेड फॉर ओनली दिस एड्रेसेस बट इट विल नॉट जनरेटेड फॉर दिस एड्रेसेस. ये एड्रेस के लिए वो जनरेट नहीं होगा, बट ये एड्रेस अगर आपको मिलेगा तो वो एड्रेस के लिए आपका वेट स्टेट है वो जनरेट होना चाहिए. सो इन दिस वे वी विल डिजाइन वेट स्टेट जनरेटर. सो दिस इज वन वेट स्टेट जनरेटर. ये सिर्फ एक ही वेट स्टेट जनरेट करेगा इन दिस एग्जांपल. सो दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वो वेट स्टेट जनरेटर में आपको क्या ऑब्जर्व करना है. ओके, so this is how we can use this wait state generator as well as ready pin. Ready pin का use क्या है? Is it clear? What is the use of ready pin and how we can use this ready pin for slower device? Slower device के लिए हम इसको कैसे use कर सकते हैं? When ready pin is activated, जब ready pin एक्टिव होगा तब क्या होगा? एक wait state इंट्रोड्यूस होगा. तो वेट स्टेट इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा? इट विल बी बिटवीन T2 एंड T3 ऑलवेज. ये वेट स्टेट कहाँ पे होगा? T2 एंड T3 के बीच में. सो इट विल जस्ट वेट स्टेट इंट्रोड्यूस होगा, उसका मीनिंग इट विल जस्ट स्ट्रेच योर दिस पर्टिकुलर डेटा बस को वो रीड उसके बाद करेगा. वो तुरंत यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा. इट विल डिले इट्स रीडिंग ऑफ डेटा बस. डेटा बस का रीडिंग थोड़ा डिले हो जाएगा. उसको थोड़ा ज्यादा टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं. आपका प्रोसेसर है, अब वो रीडिंग थोड़ी देर बाद करेगा. तो उतने टाइम में आपकी डिवाइस ने यहाँ पे डेटा प्लेस कर दिया होना चाहिए. दैट इज द अल्टीमेट एम फॉर वेट स्टेट जनरेटर and how we can use it using ready pin. Okay, so that is only the topic which was remaining from chapter number 17. Is there any question?
weight state generator. Is it fine? Can I go for the next chapter? Okay, so let me start with the new chapter, that is chapter number 16 related to serial communication. So serial input output, how we can perform serial input output. So most of the things over here in this chapter we will discuss, whatever chapter whatever things we are going to discuss, some portion of this particular chapter is connected with our network. So I hope you are paying it. I am assuming that you know some basic fundamentals related to network. आपको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पता है, नेटवर्क में सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होता है. Okay, so this is a pin diagram for our 8085. What we want to do now, we want to perform serial communication. So can you answer me that which pins are there related to serial communication? 8085 में ऐसी कौन सी पिन्स है जिसके थ्रू आप सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हो? Yes, yes, SID and SOD, this pin number 4 and 5 are there, using which we will perform serial communication. So that is one way to perform a serial communication. एक रास्ता कौन सा है? Using this pin SID and SOD, we will perform serial communication. There is another way also. So we will discuss how many ways are there for serial communication and how we can achieve this serial communication. So first of all, serial communication अगर आपको करना है तो ये क्यों करना पड़ेगा आपको? Why we require serial communication first? So serial communication is required in some of the cases where your peripheral devices are operating serially. It means सपोज आप पुराने जमाने के प्रिंटर के बारे में बात करोगे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, आप जो भी आपने कहीं पे देखा होगा, इफ यू हैव ऑब्जर्व समवेयर सीआरटी मॉनिटर्स, सो वो अगर डिवाइसेस है, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कैसेट टैप, सो वो सभी डिवाइसेस है आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस है, दैट विल ऑपरेट, दे आर ऑपरेटिंग सीरियली. सीरियल मींस इट विल ऑपरेट बिट बाय बिट, एक एक बिट पे वो ऑपरेशन करेगा. यहाँ पे 0 है तो उसका मीनिंग ऑन होगा, 1 है तो उसका मीनिंग 0 है तो उसका मीनिंग ऑफ होगा, 1 है तो उसका मीनिंग ऑन होगा, ये जो भी है तो उसके हिसाब से वो वहां पे इंटरप्रिटेशन करेगा. सो सीरियल पेरिफेरल डिवाइसेस are there. If you want to interface this serial peripheral devices with our processor, then we require this serial mode input output. So we need to understand some basic fundamentals related to the serial input output. First, that is interfacing requirement. हम इसको इंटरफेस कैसे करेंगे, यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए, चिप सिलेक्शन कैसे करेंगे हम इसका. सो दैट इज इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट विल बी देयर. यहाँ पे जो हम डेटा सेंड या रिसीव करेंगे, द डेटा विच विल सेंड और रिसीव, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए. सो दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरली वी आर यूजिंग फॉर सीरियल कम्युनिकेशन. सो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे. ये जो आप यहाँ से जो डेटा सेंड या रिसीव करोगे, आप अपने नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट मोड स्टडी किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट. ये जो केबल होगा, आपने नेटवर्किंग में दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्टडी किया है. यहाँ पे हम प्रोसेसर, हमारा कंप्यूटर 8085 प्रोसेसर एंड उसके नियर बाय जो पेरिफेरल डिवाइस है वो दोनों के बीच में कंसीडर करेंगे. नेटवर्क में आपने ब्रॉड टर्म में इसको अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है. यहाँ पे हम सिर्फ नियर बाय डिवाइस के लिए इसको स्टडी करेंगे. तो ट्रांसमिशन फॉर्मेट, ये दोनों डिवाइस है आपने कैसे कनेक्ट किए हुए है, वेदर इट इज कनेक्टेड सिंक्रोनस मोड, वेदर दे आर कनेक्टेड इन एसिंक्रोनस मोड, कैसे ये कनेक्टेड किया हुआ है, आपने जो ट्रांसमिशन मीडियम रखा है वो क्या है, कोएक्सियल केबल है,
फाइबर ऑप्टिक्स है, आपने ये जो कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या रखा है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आपने ट्रांसमिशन फॉर्मेट क्या रखा है. देन आफ्टर दैट वी नीड टू चेक serially data send या receive करेंगे, then we need to check whether there is any error in the data communication or not, how we can send the data over the telephone lines, what are the standards for serial input output, and how we can do this serial input output using software. It means using our program and using some peripheral device. So that is a hardware approach. We will use one chip for serial communication. So that is we are going to discuss in detail. हर एक जो points है वो हम detail में discuss करेंगे. So first interfacing requirement. So interfacing requirement for serial input output peripherals. We require in this interfacing. जैसे हमने peripheral parallel input output के लिए हमने interfacing study किया था, वैसे ही सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए भी आप कोई भी इंटरफेसिंग वहां पे यूज कर सकते हो. इंटरफेसिंग का मीनिंग क्या है, आप जो डिकोडर यूज करोगे, 3x8 डिकोडर यूज करोगे या नैंड लॉजिक लगाओगे, उसमें से एक आउटपुट मिलेगा, वो जाएगा चिप सिलेक्शन में. सो वैसे भी आप यहाँ पे चिप सिलेक्शन या वैसे भी कोई इंटरफेसिंग यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो. So based on that, it will decide that how many number of lines we are using for our serial communication. Serial communication के लिए हम कितनी lines use करेंगे. Then what kind of data we are using over here? Generally, most different codes are there. Different types of codes are there. So जो codes हम use करेंगे, that will should be common for both sender and receiver. अगर यहाँ पे मैं suppose Chinese language में आपको explain करूंगा कुछ, तो आप वो समझ नहीं पाएंगे. So there should be some common code of understanding between these two, sender and receiver. So generally we are using this ASCII code, which is stands for American Standard Code for Information in Exchange, Interchange, and that is of 7-bit code. ये जो है वो 7-bit का code है. So 7-bit code, so इसमें 0 से 9 के लिए capital A2, capital Z, small a2, small z, each is having some hexadecimal value. So this is just for example, I have written 0 to 9. We are representing in ASCII by 30239. And transmission format, so जैसे मैंने आपको बताया था, synchronous communication as well as asynchronous communication. So what is the difference between synchronous and asynchronous that you are already aware about? Synchronous में क्या होगा? There will be common clock between sender and receiver. This is a transmitter and this is a receiver. There will be common clock between sender and receiver. Both are operating at the same clock. So data जो आप send करोगे उसमें starting में synchronization bits होंगे if required. So framing आपने study किया होगा. So synchronized frame bits will be there, and then there will be data. Actual data will be sent from sender to receiver. So that is called synchronous. So based on some common clock, it will operate. यहाँ पे जब आपका क्लॉक सेम क्लॉक होगी तब ये डेटा ऑपरेट होगा. And in asynchronous communication, this is asynchronous communication. They are having different clock. They can operate on different clock. But यहाँ पे जब इसके पास डेटा रेडी होगा वो क्या कर देगा, it will send the data. And data will be sent with start bit and stop bits. Start bit and stop bit के हिसाब से आपका डेटा जो डेटा सेंड होगा ASCII कोड D0 to D7, उसमें आपका स्टार्ट बिट एज वेल एज स्टॉप बिट भी हम इंक्लूड करेंगे. सो फ्रेम बनेगी उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, सो फ्रेमिंग में हम स्टार्ट बिट एज वेल एज स्टॉप बिट भी इंक्लूड करेंगे. सो दैट इज फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. फॉर बोथ योर sender and receiver are operating at different clock. One more terminology, that is baud rate. So what is a baud rate? Baud rate क्या है? You learn in network. What is the definition of baud rate? How many? What is definition of baud rate in terms of communication network? Network के term में आपने क्या study किया था? Anyone from you can unmute and answer me. कोई एक आंसर दे सकता है मुझे unmute करके? 2 times the bit rate.
Okay, 2 times the bit rate. But what is the bit rate? Bits per second transmitted per second. Ultimately, in simple language, we will say that आपने यहाँ पे सपोज मैं आपको बोलूं 200 बिट्स को सेंड करने के लिए 1 सेकंड लगता है. It means that how much data you can transfer in 1 second. That is called baud rate. 1 सेकंड में आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कितने बिट्स ट्रांसफर कर सकते हो. You can say that bits per second. How many bits per second you are transferring? So let's say that if I will say that baud rate is 1200, then in 1 second I am transferring 1200 bits. 1 सेकंड में मैं कितने बिट्स सेंड कर रहा हूं? 1200 बिट्स विल बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. यहाँ पे आपका सेंडर होगा, यहाँ पे रिसीवर होगा. तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ये जो डेटा लाइन है उसमें मैं 1 सेकंड में कितने बिट्स सेंड करूंगा? दैट इज 1200 बिट्स इफ माय baud rate is 1200. Now, based on that, if I will write it over here, that let's say that 1000, in this example, 1200 bits will require 1 second. So, one bit will require, what is the time that your one bit will require? एक बिट को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? एक बिट सेंड करने के बाद हमको क्या करना होगा? What is the time for one bit? What will be the time? 1 divided by 1200. So that is, if you will consider over here, so you will find it at is 0.83 millisecond. So what we will do over here, हम यहाँ पे क्या करेंगे? In serial communication data transfer with our sender and receiver, what we will do? First, for two approach, हमारे पास दो approach है, software approach as well as hardware approach. दोनों अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल सेंड द स्टार्ट बिट. राइट नाउ वी विल डिस्कस ओवर हियर asynchronous communication. In this particular chapter over here in 8085 serial communication, we will just discuss asynchronous communication. Synchronous communication के बारे में हम यहाँ पे कुछ बात नहीं करेंगे. We'll discuss about asynchronous communication. So asynchronous communication में हमको क्या करना होगा? First we need to send the start bit. Then we need to send our data. So D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6, and 7. We will send data. So that is our ASCII code. ASCII code हम यहाँ पे send करेंगे. So what is the ASCII code that we are sending right now? 1. यहाँ पे ये 1 है वो LSB होगा आपका 1 0 0. So 1 0 0 then 1. And this is 0 0 1 0. So 0 0 1 0. So this is your MSB bit and this is your LSB bit. So what is data we are sending in this example? So this is, let's say that 4 and this is 9. So this is 49H we are sending. So 49H हम यहाँ पे send कर रहे हैं. So it means that we are sending G. कैरेक्टर G को आप अगर कन्वर्ट करोगे ASCII कोड में तो वो क्या होगा? 49. 41 से A B C D अगर आप कैलकुलेट करोगे so 41 is for A. Likewise, so 49 is for G. So G हम यहाँ पे send करेंगे and then we will send the stop bit. So what we will do over here in our approach, we will send the start bit, then we will send our first bit, so that is a 1. So यहाँ पे पहले हम 1 send करेंगे. So we will make this 1 and then we will wait for 0.83 millisecond. क्यों? क्योंकि हमको कितना baud rate अचीव करना है? 1200. So we will generate a delay of
0.83 मिलीसेकंड एंड देन वी विल सेंड अवर नेक्स्ट बिट, फिर हम हमारा नेक्स्ट बिट है वो सेंड करेंगे. सो ये दो बिट के बीच में डिफरेंस जो होगा वो हम किसके थ्रू जनरेट करेंगे यहाँ पे. सो देयर इज वन अप्रोच दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर अप्रोच. तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, 0.83 मिलीसेकंड का डिले जनरेट करेंगे एंड देन वी विल सेंड द नेक्स्ट बिट सेंड करेंगे, वापस 0.83 मिलीसेकंड का डिले जनरेट करेंगे एंड देन वी विल सेंड द नेक्स्ट बिट. सो ऐसे हम हमारा डेटा है वो पूरा सेंड करेंगे. So I will explain that flow chart in next slide, but that is how we will use in software approach. हार्डवेयर अप्रोच में भी वैसा ही होगा, बट वो सब कुछ मेंटेन कौन करेगा, आपकी एक पेरिफेरल डिवाइस that is 8051 that is called serial UART. We will call it universal synchronous asynchronous transmitter and receiver. So that is we will call, so that will perform this operation. वो भी यही करेगा बट वो ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा. एंड इन सॉफ्टवेयर अप्रोच वी नीड टू डू दिस. हमको ये सब कुछ मेंटेन करेगा, हमको मींस योर प्रोसेसर विल मेंटेन दिस ऑल द थिंग्स. एंड आफ्टर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा फॉर एरर चेकिंग व्हाट यू नीड टू डू, दैट पैरिटी चेक, चेकसम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. सो दैट यू हैव लर्न इन नेटवर्क. पैरिटी चेक कैसे होता है, चेकसम कैसे होता है, सीआरसी कोड कैसे होता है. एंड टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर जनरेट करेगा, वो डेटा होगा एक्यूमुलेटर में. सो एक्यूमुलेटर में हमारे पास 8 बिट का डेटा होगा. वी विल हैव 8 बिट डेटा इनसाइड एक्यूमुलेटर. सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, 8 बिट के डेटा को डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट में सेंड कर रहे थे. बट अगर सीरियल कम्युनिकेशन, आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वी नीड टू सेंड कन्वर्ट दिस 8 बिट डेटा फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल. इस मीन्स इसको 1 बाय 1 बिट हमको सेंड करना है. सो इसको सब, ये जो 8 बिट डेटा है उसमें से पहला बिट यहाँ पे आएगा, 0 आया सपोज. सो वो 0 को अब क्या करना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, टेलीफोन लाइंस. सो मोडेम के थ्रू हम इसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे. सो विल कन्वर्ट इट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. एंड एनालॉग कन्वर्जन के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू ऑलरेडी लर्न, एफएसकेस, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, मॉड्यूलेशन शिफ्ट कीइंग. सो डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक, फेज शिफ्ट कीइंग आपने स्टडी की हुई है, सो वो यहाँ पे अप्लाई होगी. एंड देन ओवर टेलीफोन लाइंस the data will be sent. So that is at sender side. ऐसे आपका डेटा 1 by 1 बिट है वो सेंड होता जाएगा. सो ऐसे आपका डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा. विल मॉड्यूल इट ओवर हियर. एंड देन एट द रिसीवर एंड पे क्या होगा, उसका रिवर्स. डेटा यहाँ से रिसीव होता जाएगा, डेटा विल बी रिसीव्ड एंड मोडेम विल कन्वर्ट इट. आपका जो मॉड्यूलेशन किया होगा उसको डीमोड्यूलेट करेगा एंड इट विल गिव यू द बिट. सो आपने यहाँ पे जो 0 सेंड किया होगा वो यहाँ पे 0 रिसीव होगा एंड देन इट विल रिक्वायर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. सो उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. 1 by 1 डेटा जो रिसीव होगा उसको हम कोई एक रजिस्टर में स्टोर करवाते जाएंगे एंड देन वी विल सेंड इट टू द प्रोसेसर. क्योंकि प्रोसेसर है वो तो 8 बिट एट अ टाइम ऑपरेट होता है, हमारा 8085 है वो 8 बिट एट अ टाइम ऑपरेट होता है. सो इट विल लाइक दैट, वी विल परफॉर्म लाइक दिस. सो जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है, सो वो जनरली है वो RS-232 स्टैंडर्ड. जो हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं दैट इज RS-232 कनेक्टर. सो यू माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ कनेक्टर्स, आपने ऐसे कनेक्टर्स देखे होंगे. दिस इज अ 25 पिन कनेक्टर. There are different connectors for serial communication also. 9 pin connector is also there. 12 pin connector is also there. This is a diagram for 25 pin connector. So वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे. So यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेसर है उसको कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है सीरियली. सपोज उसको मोडेम के साथ कनेक्ट करना है. So let's say that this is a modem and this is your 8085 processor. So modem एंड 8085 प्रोसेसर, ये दोनों के बीच में आपको क्या करना होगा, ये RS-232 केबल यूज करना होगा. सो दोनों के पास ये पोर्ट होने चाहिए. सो ऐसा केबल आपको यूज करना होगा. यू नीड टू यूज दिस केबल ओवर हियर. ये कनेक्टर है
यहाँ पे ये कनेक्शन का डायग्राम है। सो उसमें हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये 3 लाइन ही है। ये जो कनेक्टर्स है उसमें से बाकी सभी लाइन्स है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए भी यही केबल यूज होता है, बट हम यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस ओनली ऑन दिस लाइन्स। यहाँ पे क्या होगा, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये जो है डेटा आपका 8085 कैन सेंड डेटा इन फॉर्म ऑफ करंट के फॉर्म में भी आप यहाँ पे डेटा सेंड कर सकते हो, एंड इट कैन सेंड डेटा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ऑल्सो। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो वोल्टेज का एग्जांपल है। वोल्टेज अब हम यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे कौन से टर्म में, वोल्टेज के टर्म्स में। सो आपका जो जीरो होगा, योर जीरो, यहाँ पे सपोज हमको डेटा सेंड करना है 0 1 1 1 लाइक दिस। अभी मैं 4 बिट का एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ये 0 सेंड करना है तो 0 कन्वर्ट होगा कितने वोल्टेज में, तो 0 विल बी कन्वर्टेड इन दिस वोल्टेज +9 वोल्ट इन दिस रेंज। जो भी आप वोल्ट कंसिडर करोगे ये आपका +9 वोल्ट यहाँ पे सेंड होगा। एंड सेम वे अगर 1 होगा तो -9 वोल्ट में कन्वर्ट होगा। सो 1 and 0 will be converted in +9 volt and -9 volt. This is negative voltage converter, so it will convert reverse 1 को -9 में, and so you require some logic circuit over here which will do this. So that is called converter, line driver. We will call it as a line driver. इसको हम generally क्या बोलते हैं, we will call it as a generally line driver. इसको line driver बोलते हैं। Line drivers are there which will convert this your voltage into desired voltage, your particular bits 0 1 1 0 उसको voltage में convert करने के लिए line drivers चाहिए। So this is just example. MC1488 is, you can say that is one line driver. And same way यहाँ पे जो वो रिसीव होगा वो वोल्टेज रिसीव होगा, सो उसको वो कन्वर्ट करेंगे, ये आपके वोल्टेज को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, so it will again convert into 0 1 accordingly. So for our discussion important point is this, how we will use this RS232 cable। RS232 केबल को कैसे यूज करेंगे, so यहाँ से आपका डेटा सेंड होगा। so how we will connect this, ये जो आपका वायर है, ये जो आपका कनेक्टर है, ये जो केबल है, केबल में यहाँ पे जो कनेक्टर है उसमें इंटरनली पिन नंबर 2 को किसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, सो वी विल कनेक्ट दिस पिन नंबर 2 विथ पिन नंबर 2। सो यहाँ पे एज अ टर्मिनल जब आप इसको यूज कर रहे हो, ये पोर्ट को यूज कर रहे हो टर्मिनल के साथ, सो इट विल यूज एज अ ट्रांसमीटर। तो यहाँ से हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग इट एज अ मोडेम, सो ये जो पोर्ट है यहाँ पे मोडेम के साथ जो पोर्ट होगा वो कैसे यूज ट्रीट होगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिसीवर। So pin number 2 is connected with pin number 2. So that is called DTE and DCE means what? Data terminal equipments and data communication equipments. What is the full form of DTE? Data terminal equipments, and DCE means data communication equipments. Communication equipments means modem. And this is your terminal equipment means your processor 8085. सो जब यहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे तो कौन सी पिन पे डेटा सेंड होगा, पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 2 is connected over here with pin number 2, so that it will receive this data over here and data will be received to your particular modem. अगर modem को डेटा वापस सेंड करना है, if modem wants to send data then it will send via this. So modem के लिए ट्रांसमीटर कौन होगा, so pin number 3 is a transmitter and pin number 3 over here is a receiver। यहाँ पे pin number 3 है वो as a receiver होगी। so ये जो केबल होगा वो I will show you, ये केबल ओपन करके मैं आपको बताऊंगा, लेबोरेटरी सेशन है उसमें मैं ये केबल आपको बताऊंगा, इसमें इंटरनली ये पिन कैसे कनेक्टेड है, how these pins are connected। so this is 2
will be connected at 2. So this is a transmitter and this is a receiver, and over here it is a transmitter and common ground दोनों में connect होना चाहिए. So this 3 pin, minimum this 3 pin should be connected in this cable. ये cable में internally ये 3 pin connect होनी चाहिए. So this is one end. So suppose इसको यहाँ पे आप 2 बोलोगे तो 2 किसके साथ connect होना चाहिए? यहाँ पे 3 के साथ. So 2 यहाँ पे 2 के साथ 3 के साथ connect होना चाहिए. So according to that it will operate. ये operate होगा. But if we will use it, so यहाँ पे ये same diagram है. This is our 8 serial connector. So यहाँ पे pin number 1. So this is a pin number 1, which is for ground, protective ground. Then pin number 2. For our intention, we require only this 3 pin. Pin number 2, 3, and 7. So that is transmitted data, received data, and ground. All other things are required, but that is for serial communication, which we will not discuss over here. So typically ये 3 हमारे लिए important है, 2, 3, and 7. So if you are connecting like I have explained, यहाँ पे आपका प्रोसेसर होगा और यहाँ पे एक मॉडेम होगा, तो ऐसे हम कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे ये ट्रांसमीटर एंड यहाँ पे ये रिसीवर. So pin number 2 is work like transmitter and pin number 2 is work like receiver over here. But if you are using over here, यहाँ पे आप है, अगर कोई एक डिवाइस कनेक्ट करोगे, so that is another type of connection. आप यहाँ पे इसको डिवाइस at the end, suppose आपने यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है. If you have connected printer over here, then we need to use it in this connection. इसको हमको ऐसा null modem connection में use करना होगा. So at that time we need to switch this role. So at that time you need to connect it as a cross wire. इसको as a cross wire connect करना होगा. So at that time pin number 2 is a transmitter. Over here pin number 2 is also transmitters. This is your sender and let's say that this is your receiver. So जब ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा तो कौन सी पिन पे ट्रांसमिट करेगा? पिन नंबर 2 के थ्रू. एंड यहाँ पे डेटा रिसीव होगा वो पिन नंबर 2 पे. बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सो नल मॉडेम कनेक्शन में कनेक्शन कैसे होना चाहिए? सो इन नल मॉडेम कनेक्शन पिन नंबर 2 विल बी यूज ओनली एज अ ट्रांसमीटर. सो यहाँ से भी अगर आप इसको डेटा सेंड करना है तो पिन नंबर 2 पे सेंड करेगा. और इसको रिसीव कैसे करेंगे हम? कौन सी पिन पे रिसीव होगा? पिन नंबर 3 पे. एंड सेम वे यहाँ से भी पिन नंबर 2 पे डेटा सेंड होगा एंड पिन नंबर 3 पे रिसीव होगा. So that is called null modem connection, or you can say that is called cross cable. So we will see it with diagram and with program. मैं आपको ये diagram explain करूंगा, आपको केबल ओपन करके बताऊंगा ये null modem connection कैसे करेंगे, as well as what is a straight through connection. This is a straight through connection. So this two type of connections can be possible between your sender and receiver. ये sender and receiver के लिए हम ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे RS-232, उसमें 2 टाइप के कनेक्शन पॉसिबल है. दिस कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज नल मॉडेम कनेक्शन. सो यहाँ पे ये एज अ मॉडेम यूज नहीं होगा. दिस विल बी योर एंड टर्मिनल. यहाँ पे ये क्या होगा? आपका एंड टर्मिनल होगा. सपोज कोई प्रिंटर है, सो इट इज नॉट. So this is, if you will observe, then over here it is written data communication equipment and over here it is written as a data terminal equipment. So यहाँ पे अगर दोनों आपके टर्मिनल इक्विपमेंट्स होंगे तो आपको नल मॉडेम कनेक्शन यूज करना होगा. बट इफ वन इज योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट then you have to use this straight to connection. So how we can program it? इसको सीरियल इनपुट आउटपुट हम कैसे कर सकते हैं? तो सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए 2 अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड हार्डवेयर अप्रोच. सो विल डिस्कस दिस अप्रोचेस एंड स्टेप्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ये स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर सीरियल कम्युनिकेशन. ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, एंड हार्डवेयर अप्रोच है तो उसमें हम क्या करेंगे. व्हाट वी विल डू इन सॉफ्टवेयर अप्रोच, व्हाट वी विल डू इन hardware approach. So till this particular point, if you are having any doubt, you can ask me or just wait a minute. Let me take attendance.
And yes, one more one point is there also. I have already uploaded the attendance of your second sessional exam. सेकंड सेशनल एग्जाम तक की जो अटेंडेंस है सेकंड फेज टीचिंग फेज की वो मैंने अपलोड कर दी है. वंस लुक एट इट इनटू योर लॉगिन पोर्टल, एक बार देख लेना. इफ एनीवन इज हैविंग एनी conflict, please inform me. Make sure that you will make a proper. आप जब भी अगर conflict है कोई तो मुझे बताना, बट मेरे पास सभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग है एंड आई एम टेकिंग अटेंडेंस इन ईच एंड एवरी लेक्चर. सो जब आप मुझे बोलोगे कि सर मैं ये लेक्चर में प्रेजेंट था फिर भी आपने एब्सेंट किया है, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगा, आप कितने टाइम तक प्रेजेंट थे वो भी देखूंगा. इफ यू आर जस्ट प्रेजेंट इन फॉर 5 minutes, then your attendance will be not considered. If you have attended the lecture after 9:35 के बाद आपने लेक्चर स्टार्ट किया होगा तो भी मैंने अटेंडेंस कंसिडर नहीं की होगी. सो कंसिडर ऑल दिस पॉइंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट observe your attendance. So if you are not having any question, you can leave. If you are having any question, you can ask it.